That's my case is that this entire case is a murder case based on circumstantial evidence. There is no eyewitness in this case, Malaj. Malaj, in this case, there are five accused persons. First accused is Vartika, who is wife of the deceased. She was working at working at Amaltash Hospital at Devas. Vartika fell in love with her colleague Manish, who is accused number two, again an employee of Amaltash Hospital. Now, this fact of extramarital love affair came to the knowledge of the deceased, who was the husband of Vartika. The deceased started questioning Vartika, and therefore Vartika and Manish hatched a conspiracy to get rid of the deceased, my lord, the husband. Now, in furtherance of this conspiracy, Vartika and Manish contacted accused number three, Jitendra Verma, who is also an employee of the same hospital. Illicit relation between Vartika and Manish. My lords. So, my lords, Jitendra also got involved in the conspiracy in this murder case, my lords. Now, Jitendra, in furtherance of this conspiracy, hired two contract killers, Ankit and Arjun, whose bail applications are also listed as connected matters today. 13th of October 2021, my lords, when the deceased was coming back to his home after dropping his wife Vartika at the bus stand from where she takes the bus to Devas, the deceased was followed by Arjun and Ankit on another motorcycle. Arjun Mandloi, in furtherance of the conspiracy, threw red chili powder in the eyes of the deceased person. The deceased fell down. Arjun caught hold of the deceased, and Ankit brutally stabbed 6 knife wounds in the chest cavity and in the abdomen of the deceased, resulting into the death of the deceased at the spot itself, my lord. This is the prosecution story, my lord. Now, my lord, what happens during the investigation, the charge sheet comes to be filed, wherein call detail record. Now, my lords, the important part of this case is that there is no eyewitness over here. The entire case is based on circumstantial evidence, as I have stated, my lord. Now, my lord, the charge sheet came to be filed, wherein CDR of only Manish, Vartika's lover, was annexed. 5 mobile phones were seized from these 5 accused persons. However, CDR of only one accused person was brought on record. The brother of the deceased, who is the complainant, filed an application under Section 91. In furtherance of that, the learned trial court directed the prosecution agency to file the rest of the CDRs. The prosecution agency then filed CDR of 2 accused persons, Jitendra Verma and Vartika. Now, my lords, since Jitendra is the sutradhar of this entire murder case, he contacted the contract killers, he moderated and supervised the act of murder. So, Jitendra was in constant touch over mobile phone conversation with the 2 contract killers, Ankit and Arjun, my lords. So, my lords, the CDR of Jitendra is the most important one in this case. Now, my lords, when I perused the entire CDR of Jitendra, there were found to be 4 mobile numbers which were not seized, over which 162 calls were made by the mobile number of Jitendra. 162, my lords. Now, my lords, for assistance of this honorable court, I have prepared 1-page chart. मेरे चार्ट में सीरियल नंबर 1 पर सबसे लेफ्ट साइड कॉलम में कॉल मेड बाय मैंने बनाया है. जितेंद्र के नंबर से एक अर्जुन का नंबर है जो एक्यूज्ड है 888960, उस पर 13 बार कॉल किया है 1 day before the incident. I have annexed this chart at page number 60 and 50 of my MCRC, my lords. सीरियल नंबर 2 पे my lord, जितेंद्र ने अपने नंबर से एक और नंबर 9753612168 पर 8 बार फोन किया है अराउंड द टाइम ऑफ सेम नंबर उसी का नंबर है. मतलब जिसपे कॉल गया है वो ट्रू कॉलर के ऐप के हिसाब से जितेंद्र का नाम शो कर रहा है और इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है. 7:45 बजे की वारदात है. 7:45 से 7:30 के बीच में इस नंबर पे 8 बार कॉल जाते हैं बाय एक्यूज जितेंद्र. मान लो सीरियल नंबर 3, जितेंद्र अपने मोबाइल नंबर से फिर से एक मोबाइल नंबर पे कॉल करता है 99 टाइम्स. माय लॉर्ड्स, ये
ट्रू कॉलर ऐप में अर्जुन के नाम से नंबर रजिस्टर्ड दिखाया जा रहा है, विच इज 7400608017। ये मोबाइल ना तो सीज हुआ, ना इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, माय Arjun is an accused. यस माय लॉर्ड, अर्जुन इज द कॉन्ट्रैक्ट किलर, माय लॉर्ड। Also been accused in this case, man. Yes. सिमिलरली माय लॉर्ड, जितेंद्र अर्जुन के एक और मोबाइल नंबर पर 23 बार कॉल करता है ऑन द डेट ऑफ इंसिडेंट एंड 1 डे बिफोर द इंसिडेंट, 12 और 13 अक्टूबर को। लास्टली माय लॉर्ड, जितेंद्र अंकित जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किलर है इस केस में, उस पर 19 बार फोन लगाता है 2 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक। सो माय लॉर्ड, सीरियल नंबर 1 पे जो मोबाइल नंबर लिखा है ये तो रिकॉर्ड पे आ चुका है। हाउएवर माय लॉर्ड, सेकेंड कॉलम में जिसमें फोन कॉल्स जा रहे हैं उसमें 4 ऐसे नंबर्स हैं जिसके बारे में कोई तफ्तीश नहीं हुई है, और इन पे टोटल 162 टाइम्स कॉल कर रहा है जितेंद्र। माय लॉर्ड, ये मेरा केस है। My humble prayer in this case is to seek a direction for further investigation with these 4 mobile numbers, my lords. महाराज, पूरा केस प्रोसिक्यूशन का मुंह पर गिर जाएगा अगर कोई चेन इवेंट्स नहीं कनेक्ट कर पाए तो, बिकॉज देर आर नो विटनेसेस ओवर हियर, देर आर नो आई विटनेसेस। Now, my lords, to substantiate my point with the help of case laws, I am relying on 2 judgments, one of the Honorable Supreme Court and one by this our own Honorable Court, my lord. एक FIR की जाती है by the victim appellant on this case, जिसमें मिनिस्टर को छोड़ के उसके सारे गुंडों का नाम आ जाता है। He moved the court for further investigation. High Court dismissed it. However, Supreme Court directed re-investigation, my lords. आप ये एक्सेप्ट करते हैं ना कि ये कॉल डिटेल्स आपके द्वारा फाइल हैं? हाँ मालिक। और इसमें सेवरल ट्रांजैक्शन है मतलब पर्सन। ये जो केस है थोड़ा सा कोर्ट नहीं है मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है मतलब वो एज पर प्रॉपर है, और इनका पर आपको कहने से हो जाएगा। मैं आपको उसके बारे में इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये मतलब ये मतलब एक्चुअल में मतलब ये ट्रू कॉलर से निकाल गए कॉल डिटेल है। इन्होंने कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये ना तो कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन में इन्होंने प्राप्त की है। इन्होंने कैसे प्राप्त किया इसको सरप्राइजिंगली, अरे कॉल डिटेल हमने ट्रू कॉलर से नहीं निकाला है, 91 में आपने फाइल किया है। मतलब ये हमने फाइल किए हैं। फिर वही मतलब एक बार बोल रहे हैं कि ट्रू कॉलर से प्राप्त किए गए। मतलब इन्होंने ट्रू कॉलर पे उसको शुरू से बोलते आ रहे हैं 91 में आपने फाइल किया है इसको। मतलब मैंने ऑर्डर लगाया, इसका फैक्चुअल तो देख लीजिए क्या है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो क्लियर क्या करेंगे, गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं आप। जब ये बोल रहे हैं 91 में, याद बोल दिए 91 में हमने कोई सप्लाई नहीं किया है। मतलब कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन में जिस कॉल डिटेल के विषय में मांगा वो हमने कोर्ट को फाइल कर दिया। मतलब अब फाइल करने के बाद पर्याप्त है क्या डिटेल्स फाइल करना? नहीं मतलब पर्याप्त नहीं, उस पर इन्वेस्टिगेशन का जो इशू है। तो जिन लोगों को सस्पेक्टेड बता रहे हैं, जिन लोगों के बीच में जो कॉल डिटेल बता रहे हैं वो ऑलरेडी इसमें एक्यूज है। मतलब उससे क्या होता है? और मतलब उन्हें एक्यूज बना देना पर्याप्त है। अगर नहीं उसके मतलब जो लास्ट इन्वेस्टिगेशन एविडेंस मतलब जो लास्ट इन्वेस्टिगेशन किया है ना, वो कॉल डिटेल भी जिनके प्रेजेंस किए वो भी इन्हीं के बीच की है, जिस नंबर के हमने सीज करके पेश किए। देखिए सेशन स्टाइल के कुछ थ्योरी होते हैं, ऐसा नहीं कि आप मुलजिम बना दीजिए जो उसके संबंध में एविडेंस है उसको अलग रख दीजिए। मतलब कनेक्टिंग एविडेंस आल्सो बीन कलेक्टेड इन दिस केस। मतलब ऐसा नहीं उसमें कनेक्टिंग एविडेंस क्या इन्वेस्टिगेशन किया है बता दें। आपको इररिलेवेंट बातें बता रहे हैं, आप बताइए आईओ कौन है? सर आईओ इसमें सर रिटायर्ड हो गए सर। एक आईओ जो थे पहले। आपने स्टडी किया है केस का? मैंने थोड़ा सा स्टडी किया सर। थोड़ा सा क्यों किया? आप जब आपको बुलाया गया था तो सर ये प्रकरण जो था सर ये ब्लाइंड मर्डर था। हाँ बिल्कुल। और ब्लाइंड मर्डर के दौरान सर पुलिस ने इसमें अनुसंधान किया सर। तो इसमें जो आरोपी पाए गए व्रतिका मनीष, जैसा आपने माननीय साहब ने बोला, तो इनके सीडीआर भी निकाले गए सर। और इसमें धाराएं बढ़ाते हुए माननीय न्यायालय में प्रकरण पेश किया है सर। अभी ये साक्ष्य पर चल रहा है प्रकरण। नहीं साक्ष्य में जब तक ये डॉक्यूमेंट आपने फाइल नहीं, इस पर इन्वेस्टिगेशन क्या ये फाइल नहीं करें कैसे होगा? ये तो ये डॉक्यूमेंट्स के और इसके आधार पर भी और मेमो के आधार पर ये आरोपी बनाए गए हैं सर। तो इसमें दिसंबर में जो प्रारंभिक विवेचक थे आलोक मिठास, वो भी अपीयर हो चुके हैं सर माननीय। अपीयर जब हुए हों तो आज तो सुनी जा रही केस। तो ये जो सीडीआर आपने कलेक्ट किया है और ट्रायल कोर्ट में पेश किया है 91 के एप्लीकेशन में, आपने खुद फाइल नहीं किया।
उस पर क्या हुआ, उस पर क्या विवेचना है आपका? वो 91 के जो सीडीआर निकली थी सर, उसी के आधार पर ये आरोपी आगे बना के और इनको प्रस्तुत नो किया। मालूस, आरोपी तो पहले ही बन चुके थे। मतलब इसमें जो सीडीआर है ना, मतलब इसमें आपको चार्जशीट फाइल किया आप? हाँ, चार्जशीट में मतलब हमने सीडीआर लगाया था, आपको बता दें। ये थोड़ा सा 160, आप हमको बताइए वो फाइनल जो चार्जशीट है इसका। ये मैं आपको बता देता हूँ मतलब, और इसके रिलेवेंट में ये आप बोल रहे सब विवेचना की जा चुकी है। जो 19/1/22 को चालान पेश हो गया और 16/1/23 को सीडीआर पेश हो रहे हैं, कहाँ विवेचना हुआ उस पर? क्या डॉक्यूमेंट पेश कर देने से सिर्फ पर्याप्त है उसमें? नहीं, उसमें मतलब कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया, मैं थोड़ा सा नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। क्या ऑब्जर्व करेगा? मालूस कोई अरे ऑब्जर्व, उस पर आपको संबंधित कंपनी से मंगाना पड़ेगा, कौन इसका होल्डर है, मोबाइल होल्डर कौन है, कितने कितने बीच बात हुए, ये सब। अर्जुन और अंकित, इनके 4 ऐसे नंबर हैं जिन पे 162 बार कॉल जा रहे हैं और उस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। नंबर सेम है, अलग अलग है एक पर्सन के। मतलब अर्जुन के नंबर सेम है, अभी वो नंबर सेम है। मतलब 1 और 4 सेम है, बाकी सारे अलग है। आपने जो जब्त किया सीडीआर वो तो भेजा है, मतलब लेकिन ये सीडीआर जो 91 में मंगाए गए हैं, क्या रिलेवेंट नहीं थे ये? माइलेट, वो उसी के विषय में कोर्ट ने फाइंडिंग भी दिया, मैं वही आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि जो कनेक्ट है वो बिल जुड़ चुका है और इन्हीं सीडीआर के कनेक्शन से माइलेट, क्योंकि ब्रूटल मर्डर था, सस्पेक्टेड मर्डर था, इनको हमने आरोपी बनाया है। तो हर कोण से लेना चाहिए ना आपको, ब्रूटल मर्डर वो उसके संबंध में मतलब उसमें जो है कनेक्टिंग एविडेंस भी कलेक्ट किए, वो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा। हम नहीं जानते कनेक्टिंग एविडेंस क्या है, हम तो ये जानते हैं ये भी एक मटेरियल एविडेंस। हाँ, मटेरियल एविडेंस है, पर मतलब ये एक्चुअल में क्या है, ऑलरेडी सीडीआर जो है दोनों जो उनके बीच में कनेक्टिंग, एक्यूज के बीच में, को एक्यूज और एक्यूज के बीच में, वो हमने ऑलरेडी कलेक्ट किए। ये क्या नहीं थे रिलीवेंट जो ये बता रहे हैं? उसी के विषय में पेश करने के बाद कोर्ट ने फाइंडिंग दी, मैं आपको थोड़ा सा वो बता रहा। ये है ना, मतलब ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इट इज नॉट बीन एप्लीकेबल एट द डिसीजन एट दिस केस, मतलब देयर इन्वेस्टिगेशन प्रायर टू माइलेट, नहीं तो जनरल ऑर्डर है, बट मतलब in this case matter, prior to investigation in this case, therefore the STSC Act also been attracted and therefore the senior officer it is investigated due respect of this case. नहीं होता है, एक्ट वाइज नहीं होता है, मतलब होता है on the priority of this case मतलब। आप 15 का बताइए ना क्या हुआ, 15 के डायरेक्शन का कंप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, जनरल डायरेक्शन? ये इशू है ही नहीं है, जिन इशू है, जितने भी सस्पेक्टेड हैं वो सब कनेक्टिंग एविडेंस के आधार पर ब्रूटल मर्डर तो सारे आरोपी हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या सिर्फ एक्यूज जोड़ने के लिए होता है? नहीं, मतलब वो इशू नहीं, मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अगर अवेयर देन एनीथिंग अराइज ऑफ दिस क्वेश्चन मतलब इंटायर द इन्वेस्टिगेशन, तो वो तो इशू है नहीं, जो 5 लोगों को आरोपी बनाया है कनेक्टिंग एविडेंस का, कोई इशू नहीं है, सही है, वो सारे के सारे आरोपी हैं, उसमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ा है। अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो शायद आरोपी बढ़ जाए, वी डोंट नो ये 4 नंबर किसके हैं। चारों नंबर पे इन्हीं के जो एप्लीकेशन, आप पहले कह रहे थे कि ट्रूकॉलर पे रिलाय नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं आप इसका कनेक्शन बता रही हैं, ये कोई नया तफ्तीश करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है तफ्तीश करना जनाब का काम है। इन्होंने ठीक से की होती तो आज मैं इस एप्लीकेशन को लेके नहीं आता। इट्स बीन मालस 3 years. My brother has been brutally murdered. I am running pillar to post. मालस कहाँ जाएं हम? मतलब in that the issue मतलब, and मतलब supportive the evidence also been recorded, the 6 evidence also been before this trial court मतलब, वहां पे भी 6 evidence हो चुका है, वो सपोर्ट कर चुका है हमारी स्टोरी, तो उसमें भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बता देंगे। मालस आई एम सरप्राइज्ड स्टेट इतना ऑपोजिशन क्यों कर रहा है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन? मतलब नो एनी रिक्वायर्ड ऑफ दिस मतलब, ये एविडेंस नहीं है आपके नजरिए से? नहीं एविडेंस मतलब देयरफॉर द कनेक्टिंग एविडेंस आल्सो बीन प्रेजेंट बिफोर दिस मतलब 2 एक्यूज, कनेक्टिंग एविडेंस इनके बीच में मतलब ये पेश कर रहे हैं, 162 काल की बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कनेक्टिंग एविडेंस में मनीष और उसके बीच की हमने कॉल डिटेल इसमें पेश किया, उसी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन किया है। 5 पेश कर दिया, 15 छोड़ दिया। नहीं छोड़ा, मतलब छोड़ने का इशू जब आता है, जब कोई नया फर्दर आता है, ये उनके बीच में कनेक्शन नहीं होता। आप समझ नहीं पा रहे हैं, हमको लगता है स्टेट समझ नहीं पा रही है कि इस मटेरियल एविडेंस को समझ नहीं पा रही स्टेट कि क्या इसका रेलिवेंसी है। लॉर्डशिप एक शॉर्ट सबमिशन है आप ये अपना टेकिंग, आप किसके लिए हैं? सर मैं हूँ एक्यूज अंकित के लिए रिस्पोंडेंट हूँ सर। इसमें आप देखेंगे, आप इनकी 91 की एप्लीकेशन देख लेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। एक पार्टी है क्या इसमें? जी हाँ, ऑलरेडी तो पार्टी है। आप इनकी पिटीशन में 91 की एप्लीकेशन देख लें,
क्योंकि इस मैटर्स में फर्दर इन्वेस्टिगेशन वाली परिस्थितियां नहीं है। जो आपकी डिजायर थी और जिस बिंदुओं पे आपको जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी पुलिस ने की है और ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर बताइए सर। इनकी पेज नंबर 41 पे एप्लीकेशन देखे 91 की। 41 पे नहीं है, 41 पे सर, 41 अच्छा 41 41 पे लॉर्डशिप सेक्शन 91 का तो है नहीं यहाँ। नहीं सर, उसी से रिलेवेंसी का नहीं है, है। उसी से रिलेवेंसी है। मैं मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं आपके समक्ष में जितना क्लैरिटी ला सकता हूँ उतना लाने का प्रयास करूंगा। 41 लॉर्डशिप। अभियुक्त के मोबाइल सिम आदि जब्त किए गए तथा अभियुक्त के मोबाइल से आपसी चर्चा होने वाली महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य अनुसंधान के दौरान आवेदक को प्राप्त होने की जानकारी अनुसार कॉल डिटेल के रूप में एकत्रित की गई। और ये जो अनुसंधान के दौरान जो मौके से जब्त की थी, जिनका इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, वो पेश नहीं की। आपका ग्रीवेंस 91 की एप्लीकेशन ये था कि आपने पेश कर ली और उसको आपने जो जब्त की उसको पेश नहीं किया। आप सर इसकी लाइट में वो ऑर्डर देखें जो ऑर्डर 91 की एप्लीकेशन पर फाइल हुआ। कहाँ है? महाराज IA नंबर 5003 of 24, relevant page 5। अगर आप में इजाजत नहीं सुनिए। सर एक सेकंड, आप पूरे डिस्टर्ब कर नहीं अब लॉर्डशिप सर, वो नहीं है, एक मिनट। लॉर्डशिप पैरा 7 देखें इसका। पेज नंबर 5 सर। IA आइए का 5003/24। पैरा 7 देखें, उसके बाद मैं रिलेवेंट पैरा पे भी आऊंगा। अभिलेख का अवलोकन किया गया। पुलिस प्रतिवेदन अनुसार FSL सागर की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जो प्रकरण में संलग्न है तथा फरियादी आवेदक राहुल की ओर से प्रस्तुत CDR व धारा 65B के साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र अन्य दस्तावेज आदि मामले में संलग्न होना बताए गए। यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी गण के मोबाइल का डाटा रिकवर कर उनकी रिपोर्ट हेतु साइबर मोरेंसिक लैब भोपाल प्रेषित किए गए, जहां से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु प्रतिवेदन के साथ संलग्न विभिन्न कॉल डिटेल के प्रतिवेदन धारा 65B के साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के बाबत प्रस्तुत प्रतिवेदन में ऐसा उल्लेख नहीं है कि उनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है अथवा नहीं। अतः मूलतः वापस का थाना प्रभारी को निश्चित किया जाता है कि आगामी पेशे व केस डायरी सहित कॉल डिटेल प्रतिवेदन तथा 65B के साक्ष्य अधिनियम प्रमाण पत्र बाबत प्रतिवेदन सहित स्पष्ट करे। और इन परिस्थितियों में पुलिस प्रतिवेदन के साथ प्राप्त कॉल डिटेल के दस्तावेज अभिलेख पर लिए जाते हैं और संबंधित आरक्षक को निर्देशित किया जाता है कि साइबर फोरेंसिक लैब भोपाल से आर्टिकल प्रतिवेदन जैसे ही प्राप्त हो अविलंब प्रस्तुत करें। तो आपने जिन CDR के संबंध में इन्वेस्टिगेशन की मांग की है, बाद में फर्दर एप्लीकेशन की, वो ऑलरेडी कलेक्ट हुई। नहीं महाराज, एक मिनट सर, आप ये सेक्शन 91 का ऑर्डर है, उसके बाद मैंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं, की एप्लीकेशन लगा। मान लेते हैं ना, मान लेते हैं 91 में आया जी। क्या इन कॉल डिटेल्स के बारे में 65 के प्रमाण पत्र हैं? मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि वो कॉल डिटेल एकत्रित कर ली पुलिस ने और एकत्रित करने के बाद उनको फॉरेंसिक लैब में भेज दिया। आल्दो थाना प्रभारी, आप बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं ना, आयु नहीं बोल रहा है इस बात। नहीं, ये इसी में आया ना कि ये सारे लैब वहां से रिपोर्ट आना चाहिए। सही है, ऑर्डर की बात बता रहा हूँ। हम वही जानना चाहते हैं जो ये 91 के डॉक्यूमेंट के साथ पेश किए, नहीं डॉक्यूमेंट पेश किए, क्या उनके अदर फॉर्मेलिटीज पूरे हुए कि नहीं? जैसे 65B के प्रमाण पत्र और लेबोरेटरी के जांच भेजे गए कि नहीं भेजे गए? अगर भेजे गए तो कंप्लीट नहीं, वो तो है ना सर, भेजे गए, इसमें ऑर्डर में है सर। ऑर्डर नहीं, फिर से पढ़ देता हूँ। नहीं, ये हमको लगता तब तक के लिए है जो चार्जशीट के साथ। नहीं, चार्जशीट तो फेल हो गई, उसके फाइल हो गई, वही बता दीजिए। अगर इतना हो गया तो चार्जशीट फाइल हो गई। चार्जशीट फाइल होने के बाद में इन कॉल डिटेल के संबंध में पहले पुलिस से जानकारी क्यों चुप है, वही तो समझ नहीं आ रहा है। ये क्या करके आए हैं, ये बता नहीं पा रहे हैं। ये 22 आपने केवल कोर्ट में बुलाया था, कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया कि आ गई। अब सर कॉल डिटेल कोर्ट क्या शकल देखने को बुलाता है? नहीं, कोर्ट ने बुलाया, कोर्ट ने पाया कि कॉल डिटेल, उनको निर्देशित कर दिया कि आप पेश कर दें। मतलब इसमें एक्चुअल में समस्या ये है कि जो अनुसंधान करता है मोटवानी साहब, वो रिटायर हो चुके हैं। नहीं, ये स्टडी करके आना चाहिए ना इनको मटेरियल। या तो फिर मतलब हम मोटवानी साहब को रिटायर है, उनको नोटिस जारी करके उन्हीं को बुलवाते हैं। हमको सिर्फ जानना है कि जो 91 में पेश हुए क्या फर्दर जांच के लिए भेजे गए 65B के प्रमाण पत्र है कि नहीं उनके साथ।
ये सब फॉर्मेलिटी नहीं रहेगा तो एविडेंस में एडमिसिबल नहीं होगा वो। केवल सवाल ये है कि नंबर कोर्ट में 6 पेश होना है, वो डॉक्यूमेंट पेश हो जाएंगे तो वो उनके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन उनके अनुसार हो गई है और पेश होना है, केवल रिकॉर्ड पे आना है। अब री इन्वेस्टिगेशन या फर्दर नहीं, री इन्वेस्टिगेशन तभी होगा जब उनका प्रॉपर Investigation फाइलिंग नहीं हुई होगी। तो अब वो स्थितियां वहां नहीं है, क्योंकि ऑर्डर से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो बराबर उनको लिया, उनकी सारी सीडीआर करके भेज दिया, केवल 65B का प्रमाण सब दो पार्ट हैं इसमें, कुछ सीडीआर पहले आ गए थे उनको भेजा गया है, उसके लिए तो 91 की दूसरा जो application- मंगाया गया उसको क्या भेजा गया सर, ये 91 की एप्लीकेशन तो इनके लिए लगी है जो सीडीआर के साथ, वो जो चार्जशीट के साथ एप्लीकेशन फाइल, कहाँ है? एप्लीकेशन देखिए किस टाइम लगा होगा जो भेजा गया होगा ये- जांच के लिए। क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जो लगी है लॉर्डशिप, वो एप्लीकेशन लगी है अलग सीडीआर के संबंध में। नहीं सर, ये मेरी एप्लीकेशन देखिए, 2 मिनट पहले तो आपकी एप्लीकेशन चार्जशीट के बाद लगी कि आपने ये चार्जशीट के साथ पेश नहीं करे, और उनके संबंध में ऑर्डर है वो। मतलब मेरा केस पूरा यही है। मैं हम वही जानना चाहते हैं, अगर आपकी बात सही है तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, 2 मिनट इनकी बात सही है तो जरूरी है। और आपका ये कहना था कि आपने वो कलेक्ट तो कर लिया लेकिन चार्जशीट के साथ पेश इसमें दिक्कत आ रही, आईओ ट्रांसफर हो चुके हैं, नहीं रिटायर हो चुके हैं, ये स्टडी करके आए नहीं है उस पॉइंट पर। और उसके लिए तो ऑलरेडी कोर्ट का ऑर्डर है कि आप पेश कर दो, करना ही है इनको पेश, क्योंकि वो 91 में ऑर्डर नहीं, वो तो पेश कर चुके हैं, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं, पेश कर चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वो वही भेजे जा चुके हैं नहीं लेबोरेटरी में। सर, वो 91 की एप्लीकेशन का जो ऑर्डर है उसमें ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा कि आपने उनका अवेटेड है। अब वो पेश हुए कि नहीं हुए, ये क्लैरिटी बताएं। ये अवेटेड है, उनकी रिपोर्ट अवेटेड है और 65B के प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करें। क्या किस पद पर आएगी? बट ये अभी जो है सीपी में, मतलब एसीपी कहाँ के? एसीपी हीरानगर का। कहाँ? हीरानगर, हीरानगर। ये कहाँ पड़ता है? ये इंदौर में ही है। इंदौर में ही, मतलब एसीपी राधानगर, हीरानगर। हीरानगर इंदौर। क्या नाम है? धैर्यशील एवं और ये क्या है? सर मेरे साथ है, उप निरीक्षक है सर। इनका कोई नहीं, इज प्रेजेंट इन पर्सन, ये सब भेजे हैं, he takes time to perusal वो मैंने भी the देखी। case diary, ये चालान के समय, विकास कंसर्न चालान के समय किया गया पहले। investigation officer has been superintended. 1 week time is granted. ये भेजे हैं, ये पहले भेजी बताया यार। और अब लगा दें, कब आप बता देंगे पूरी चीज स्टडी करके, ये सब जो बातें हुई अभी पूरा कंफर्म करके। सेकेंड सीडीआर या कॉल डिटेल जो कॉल किए गए हैं 91 के एप्लीकेशन के लाइट जो पेश हुए हैं उनका क्या जांच कराने के लिए भेजा गया है कि नहीं, 65 के प्रमाण पत्र एनेक्स्ड है कि नहीं उनके साथ, अदर फॉर्मेलिटी जो भी है वो किए गए नहीं, ये आप देख लीजिए इसको, आप 2 वीक्स लगा दीजिए। कनेक्टेड केस उसी साथ लगा दीजिए, इसको देखिए।